PM's Independence Day speech, Many New Beginnings. So here this article is mainly regarding the speech that was given by India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, on the 78th Independence Day. So the major highlights of the article are one nation, one election. फिर secular civil code की जब हम बात करते हैं, perhaps uniform civil code. Here the term secular also suggests equality and significant rights to all the respective religions. फिर middle income trap or skill capital of the world, these are also major important topics that must also be highlighted, that must also have been highlighted by Mr. Prime Minister. Further research or development may there is a significant scope of expenditure. But the issue here is कि जो GDP का share है for the research and development वो significantly और ज़्यादा decline हो रहा है rather than increasing. Same is the case for education. जहाँ पर it should be 5 to 6%, it still remains around 3% of the GDP. So these are the major points here. और further multi-dimensional poverty के regarding भी जो official line है, that is कि India has nearly eliminated extreme poverty and that 248 million people out of the total population of 1,400 million, they moved out of multi-dimensional poverty in the 9 years till 2022-23 तक. So these are the major important points here. Okay, next topic. Further multi-dimensional poverty में अगर हम बात करते हैं तो main key dimensions जो है they are regarding health, education और living standards. So this article is mainly regarding the new regulations or the new norms regarding the quality of service of the broadband, wireline and wireless. So इसमें there were significant regulations that were made here. Manjari, if you could. इन दिस केस जैसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि पेनल्टीज ऑन कॉल ड्रॉप्स. तो कॉल ड्रॉप्स फॉर एग्जांपल व्हेन एवर वी आर ऑन अ कॉल और सडनली कॉल कट जाता है तो दैट इज कॉल अ कॉल ड्रॉप. सो इस पे क्या पेनल्टीज हेल्प करेंगे? पेनल्टीज ऑन द टेलीकॉम कंपनीज. सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो शायद हेल्प करे. बट अगेन कॉल ड्रॉप्स के पीछे भी जो मेन रूट कॉज है वी नीड टू लुक इनटू दैट पर्टिकुलरली. सो क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS regulations. तो सिग्निफिकेंस गिवन द चेंज इन द टेक्नोलॉजी लैंडस्केप जो हो रहा है टेलीकॉम नेटवर्क्स में, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अगेन 5G या 6G की हम बात कर रहे हैं और जो कवरेज नेटवर्क्स है वो भी एक्सपैंड हुए तो इसलिए रेगुलेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो वी हैव क्लोज टू 200 million यूजर्स ऑन 5G नेटवर्क्स. And apart from this, we are seeing key host of issues, for example, poor call quality, call muting, voice muffling. So these are the issues telecom sector में जब हम बात करते हैं quality से related, and we are not able to connect sometimes to the 5G despite active phone settings. And then there is speed में भी कोई हमें difference feel नहीं होता है जब हम 4G to 5G transition की बात करते हैं. And इसमें we are seeing तो mobile consumers they constitute 97% of the total consumer base. Mobile consumers. So this is also seeing कि जो telecom sector में हमें advancements देखने को भी मिली है. They are the results of even the structural reforms of 1991 where we saw कि open economy promote किया गया और FDI आया है जो इंडिया में even telecom rates हैं. For example, recharging rates है वो one of the most competitive है in the world. So 9 in 10 mobile subscribers, they also face call drops. So according to local circle survey, instances increase of poor call quality. तो जो norms change किए how they are going to help us.
तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है इन वॉइस एंड डेटा सर्विसेज वंस दी नॉर्म्स कम इनटू इफेक्ट, compensate the subscribers during the network outages. This is one aspect. जो postpaid customers है, compensation will be in the form of rental rebate. So ये ऐसे कुछ like financial provisions हैं. What are the penalty provisions? तो if there is a failure to meet the quality on services benchmarks, तो telcos जो telecom companies हैं, they'll be definitely liable for the penalties. So we can say कि more active regulation या फिर more active insights into what changes are happening, how we are seeing challenges are also changing the nature या फिर changing the scale. So वहाँ पे particularly we are monitoring that thing. The penalty starts at rupees 1 lakh. Second offense paid would be rupees 2 lakh, and likewise it would be increased. Next, Google to expand India AI initiative. So again, this is regarding Abhishek Bapna, Director of Production Management at Google DeepMind. तो उन्होंने भी ये हाईलाइट करा कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर्स इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर जब हम लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स की बात करते हैं LLMs की, जिसका हमने अभी कृत्रिम के रिलेशन में भी जस्ट नाउ रेड कि क्या इतना इम्पोर्टेंस है उसका। फिर फर्दर जेमिनाई की भी यहाँ पे बात होती है विच आर फॉर्मली नोन एज बार्ड। तो AI चैटबॉट है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मोर देन 40 ग्लोबल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 9 इंडियन लैंग्वेजेस। और फर्दर increasing the scope from the language to even agriculture में भी, और जो various sectors हैं उनमें कैसे AI help कर सकता है। तो here we have agricultural landscape understanding research, which is ALU research regarding agriculture. सो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं चैलेंज क्या हो सकता है जब हम AI चैटबॉट्स या फिर जब हम चैट GPT जैसे सर्च के लिए यूज करते हैं, तो उसमें वी के नॉट 100% ट्रस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है. समटाइम्स दैट कैन बी अगेन द फैक्ट्स और द इंफॉर्मेशन और एनालिसिस कैन बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज इट लैक्स द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. So that is one aspect. So we cannot be 100% dependent upon that. So that is why human resource, uh, the demographic dividend, still it is the most precious thing that is important for the economic growth of a country. Next is what are the capital gains tax rates in the world's top economies? So Manjari, please correct me if I'm wrong. जो capital gain tax rates है यानी कि when we maybe sell a capital, जैसे कोई भी asset होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स देना होता है ये उसके रिगार्डिंग। सेल करते हो और जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है. ये कैपिटल गेन्स जितना आपका प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स जो लगता है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ रियल एस्टेट मार्केट एंड इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट. जो शेयर्स है, इक्विटीज, डिबेंचर्स, उन सब पे कैपिटल गेन्स लगते हैं. तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. तो वी आर कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल अगर हम पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, सो उसमें टाइम पीरियड इंडिया के केस में है इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू एन इन्वेस्टमेंट फॉर 1 year और लेस, तो वो शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाता है. एंड रिसेंटली हमने उसको इंक्रीज किया फ्रॉम 15% टू 20%. सो बाकी हाईएस्ट इट इज इन कैनेडा 50% है, जर्मनी में 45%, यूएस में 37%. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग कि द कंट्रीज दे वांट द इन्वेस्टमेंट्स टू बी इन the high gestational period के लिए या the long term investments they should be more, because अगर आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो people would be less interested in those kinds and types of investments. And long term जो capital gains tax है उसमें time period again if it is more than 1 year तो it would be long term. Here also we have increased it to 12.5%. It used to be, I think this was uh, आई थिंक ये हमने कम किया है. ये पहले 15% होता था, इसको 12.5% किया है. या ये 10% होता था पहले. हाँ, इट यूज टू बी 10%, सॉरी. जो हमारा पहले इंडिया में शॉर्ट टर्म था वो 15 था और लॉन्ग टर्म था 10% था, तो इसको हमने स्लाइट इंक्रीज किया है.
सो वी कैन सी कि सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट जो मोस्ट डेवलप्ड है कनाडा जर्मनी यूएस देयर द डिफरेंस इज लाइक ह्यूज बिटवीन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म सो वी वांट मोर इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म टेन्योर जो टाइम पीरियड है मेच्योरिटी पीरियड इज लॉन्ग so that we can channelize those investments for economic growth for infrastructure creation and towards capital expenditure instead of the short term ones because they are more volatile also and there we are seeing more profit earning ability वहाँ ज्यादा देखी जाती है कि उस हिसाब से उस पर्सपेक्टिव से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड Hmm. Again, continuing with the same topic, AI chip that is Bodhi. Again, uska release होएगा. It will be ready by 2026. तो Moonshot project by Ola founder Bhavish Agarwal. तो again, तो सेमीकंडक्टर चिप्स हाँ यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है जैसे मेंशन है इट विल पावर द डेटा सेंटर्स आल्सो तो डेटा सेंटर्स क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं स्टोरेज एंड द लोकलाइजेशन ऑफ द डेटा इंडियन प्रोवाइसेस इंडियन टेरिटरी में ही होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेटा प्राइवेसी because it has been declared to be the fundamental right by the Supreme Court and डेटा सेंटर्स के केस में यहाँ पे भी हम इंडिजिनाइजेशन पे ही फोकस कर रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी तो जो जो कंपोनेंट्स है वी आर फोकसिंग की दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आर इवन नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव सो इंडिजिनाइजेशन द मेन फोकस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इवन जो बाकी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे भी the semiconductor chips they form a very important raw material when it comes to manufacturing and इसमें again हमने देखा था आफ्टर कोविड-19 देयर वर सप्लाई चेन डिसरप्शंस जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट भी देखने को मिला था ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर सो इट हैम्पर्ड द ग्रोथ देयर आल्सो सो दैट इज व्हाई इंडिजिनाइजेशन सेल्फ रिलायंस इज इम्पोर्टेंट एंड पर्टिकुलरली ईवीज पे हम फोकस कर रहे हैं फेम स्कीम इज देयर कैफे नॉर्म्स हैं जो पर्टिकुलरली अगेन चलो वो तो फ्यूल से रिलेटेड है कैफे नॉर्म्स बट फेम स्कीम इन इंक्रीजिंग दी सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो हाइब्रिड व्हीकल्स भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं So important players यहाँ पे Nvidia, Intel, Qualcomm, advanced micro devices भी हैं, and then also Micron player and Taiwan में TSMC is there. हाँ also इसमें जो चिप फैब्रिकेशन प्लांट है तो ग्रीन फील्ड प्लांट और फैब सो फार तो ये भी हुआ है बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान PSMC important. Further, government kicks off plans for 2025 hub airports in 2 decades. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात हो रही है एयरपोर्ट्स की अगेन कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना इसमें तो कंट्रीब्यूशन है ही फर्दर स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में भी इट कैन हेल्प और इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है अगेन कंट्री की जो लोकेशन है उसकी वजह से वो ग्लोबल एयर ट्रैफिक के लिए भी एक ट्रांजिट पॉइंट हो सकता है जहां से जब हम कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेते हैं उसमें हब यहाँ एयरपोर्ट पे इंडिया हब एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कीवर्ड है तो व्हाट आर हब एयरपोर्ट्स तो दे एक्ट एज सेंट्रल एयरपोर्ट जैसे हब एंड स्पोक मॉडल की हम बात करते हैं एक सेंटर होता है जहाँ पे जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है तो हब एयरपोर्ट्स भी उसी तरीके से एक्ट करेंगे देयर विल बी सेंट्रल एयरपोर्ट दैट सर्व्स एज अ की कनेक्टिंग पॉइंट फॉर द फ्लाइट्स इन एन एयरलाइंस नेटवर्क फॉर एग्जांपल रिफ्यूलिंग के लिए भी हो सकता है फॉर स्टॉपेजेस भी हम यूज कर सकते हैं एंड व्हाई क्रिएशन ऑफ द एयरपोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज we are seeing कि different airlines ने they have ordered around 1500 more aircrafts more planes so हम उनको कहाँ स्टेशन करेंगे इंडिया में उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए so that we can manage that air traffic properly तो इसलिए क्रिएशन ऑफ हब एयरपोर्ट्स और ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए हो जाते हैं so India's aviation industry and the expansion so this is also one the indicator and air travel की डिमांड भी और इंक्रीज हुई है सो टूरिज्म सेक्टर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दोनों की ग्रोथ भी इंटरलिंक्ड है विद दिस एंड and ऑल्सो also इंटरनेशनली भी हाँ इंटरनेशनली भी जैसे हम बात करते हैं तो इंडियाज नेचुरल जोग्राफिकल लोकेशन इज सच कि वी आर एक्टिंग एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर इवन द एयर ट्रैवल ऑल्सो चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन फ्लाइट से रिलेटेड हो या फिर सेंट्रल एशियन फ्लाइट से रिलेटेड हो तो हमें कनेक्टिंग पॉइंट है इंडिया इज इन द सेंटर ऑफ बोथ दीज रीजन्स
नेमिंग द अपकमिंग एयरपोर्ट हब्स, तो उसमें फर्स्ट इज जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन नोएडा. फर्दर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंशन, फिर कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कन्नूर विल बी इन केरला, और फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नॉर्थ ऑफ गोवा. तो ये कंजेशन को भी रिड्यूस करेगा और बेटर कनेक्टिविटी को भी क्रिएट और वी करेगा. आर ऑल्सो फोकसिंग अपॉन की मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करते हो, तो उसमें अगेन एयर सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर या हैविंग एन एयरपोर्ट इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इंपॉर्टेंट है. सो इट विल बी कनेक्टिंग cities like Chennai, Leh, Chandigarh, Bengaluru and Dehradun also. So these also will be having the airports. So यहाँ से क्योंकि अगेन बिजनेस ग्रोथ ज्यादा है, बिजनेस ट्रैवल ज्यादा होता है, तो दैट इज वाई having airports is important. तो important players in Indian Airlines, Indigo, Air India, Akasa, ये सबसे ज्यादा we can see की most growing airlines in India. Next, India's rise will depend on how safe women feel. So this article is with regard or in continuation with the recent incident that took place where a female doctor in Kolkata's RG Kar Medical College, she was allegedly raped and also murdered. तो यहाँ पर हाइपर विजिलेंसी की बात हो रही है, जो वुमेन को ध्यान रखना पड़ता है वाइल दे गो आउट. एंड यहाँ पे जब हम बात करते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन की इन द वर्क फोर्स, तो सेफ्टी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस अपार्ट फ्रॉम केयर गिविंग एंड चाइल्ड रियरिंग, जो कि हम बोलते हैं कि दीज आर द मेजर रीजंस. बट इसके अलावा सेफ्टी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से इतना ओपनली, इतना फ्रीली women they are not able to work. और And फर्दर even जब हाँ लो पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इंडियाज फीमेल या फीमेल वर्कर्स की बात करते हैं इन द लेबर फोर्स, उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन यही है. अकॉर्डिंग टू दिस 2021 पेपर वुमेन वायलेंस एंड वर्क, द थ्रेट ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस एंड वुमेन डिसीजन टू वर्क, इसमें क्लियरली स्टेटेड है कि वुमेन्स फियर ऑफ वायलेंस इज अ रीजन फॉर द लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट. So additional crime जो है per 1000 women in a district, roughly 32 women they are deterred from joining the workforce. So the moment you step outside your home, you have that constant kind of, जैसे यहाँ पे लिखा है कि you have to be hyper vigilant each and every moment you are outside your home. So is it the case for males also or not? ऐसा नहीं होता है ना, तो why for female? हम हमारी safety या फिर जो एक constant fear हमारे mind में चलता रहता है, why is it so? या हम टाइम का इतना ध्यान रखते हैं कि अगेन डे टाइम में वी इंश्योर कि वी आर बैक होम. ऑल्सो जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करते हैं, तो ये सिर्फ जस्टिस की बात नहीं हो रही कि राइट टू वर्क एटसेट्रा. इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. प्लस में इंडिविजुअलिटी का भी मैटर है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जब हम हमें रिस्पेक्ट देनी है फीमेल को, तो इट इज नेसेसरी टू यूज द टर्म्स लाइक अम्मा, चाची, ताई, बेटी, बहन. तो दिस इज नॉट नेसेसरी. जैसे कि हम किसी और कास्ट को एड्रेस कर रहे हैं, just their own individuality or being just a woman or even a human for that matter should be enough in itself. और प्लस में ये जो crimes etc हैं और the instances of violence or abuse that happens outside of house, it is not restricted to that area. Inside house में in fact ज्यादा होता है, where due to financial dependency या फिर even due to the societal norms, women they fear and they do not speak up against it and they just keep on. ऑल्सो यहाँ पे जैसे मेंशन भी है कि इंडियन सोसाइटी क्या है, इट इज डोमिनेटेड बाय पेट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. सो जैसे यहाँ एक सेंटेंस में मेंशन है कि द मेल्स दे फील we allow women to get educational degrees, they allow us. So nobody is there to allow female to go for again a job हो गया या फिर education हो गया फिर any other her life decision. So this mindset also needs to be changed. And apart from this we also see कि if women, the women who are not financially independent, तो उनकी bargaining power in terms of decision making household level पे चाहे हम बात करें वो भी नहीं होती है, तो उनको consider ही नहीं किया जाता if they are not financially contributing to a family. So this shouldn't be the basis, finance.
और फाइनेंस वो मतलब जॉब पे जाने पे ही अगर हमें थ्रेटफुल फील होता है तो फिर वो वर्क भी कैसे करेंगे, और साथ में फिर आप उनको अगेन हाउस होल्ड में भी जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट कि वुमेन फील्स एम्पावर्ड, कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है किसी भी तरीके से। तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं या फिर अगेन सो इसमें जैसे हम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो रिसेंटली जैसे पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन या फिर हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, एंड शी बॉक्स का एक नॉर्म है। देन एक प्रॉपर लाइक कमिटी होनी चाहिए, कंप्लेंट्स कमिटी इन एवरी कॉर्पोरेट एंड एट द प्रीमाइसेस, एंड अगेन वुमेन शुड आल्सो बी द मेंबर्स ऑफ इट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म है, बट वेदर दे आर बीइंग एडिक्वेटली फॉलोड, और क्या ये एडिक्वेट है टू इंश्योर द सेफ्टी, क्योंकि ये तो कंप्लेंट मैकेनिज्म है ना। आफ्टर द इंसिडेंट्स अगर आप चैलेंज या कुछ ऐसा फील करते हो तो आप कंप्लेन करते हो, तो कंप्लेन करने की जरूरत ना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। And further इसमें when we talk about the acts, तो Indian Penal Code, फिर Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, this is specifically for workplace itself, फिर Domestic Violence Act 2005, और POCSO is for the children 2012। और अगर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो निर्भया फंड जो 2012 में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से इट वाज अ स्टेप टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द विक्टिम्स, सेल्फ या डिफेंस के निर्भया, प्रोग्राम्स होते हाँ, हैं इवन। फंड जो फंड भी बनाया है उसके फाइनेंस यूज ही नहीं हुए, सो उसका भी अल्टीमेट जो aim था वो फेल ही हुआ है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि फंड्स भी कलेक्ट हो गए हैं या जो एडिक्वेट फाइनेंस है बट दैट इज नॉट बीन यूज्ड एडिक्वेटली। और प्लस में इवन सेफ सिटी इनिशिएटिव्स कि जिसमें सर्विलेंस है वो हर जगह होना चाहिए, इम्प्रूव स्ट्रीट लाइटनिंग, कोई भी ऐसे डार्क स्पॉट्स ना हो, और जेंडर सेंसिटाइजेशन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना सीरियसली नहीं लिया जाता इवन इन द पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। Next, digital boost to revive solar power installation scheme. So here there is a major scheme mentioned, that is PM Kusum, which is Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhiyan. So this is for the setting up of 100 gigawatt of solar power plants in farm owned land. तो ये kind of integration हो रहा है of the agricultural lands with the solar energy production, और 14 लाख सोलर पंप्स को इंस्टॉल करा जा रहा है, और अगेन ग्रिड कनेक्शन जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कलेक्टिवली। So this is a scheme that a program that was recently launched. Or with this, we also have Global Energy Alliance for People and Planet. This is also an important alliance that we सो can. इट कैन बी लिंक्ड विद जो इंडियाज विजन एंड इनिशिएटिव है, वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन। सो जो अगेन एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस है हम उनको डील कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमें जो गैप्स है उसको फिलफिल करने के लिए चाहिएगा इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी विद दी ऑल दी कंट्रीज ग्लोबली, हाउ दैट वुड बी अचीव्ड। एंड इन नेशनली अगर हम हर्डल्स की बात करते हैं टू दिस द पर्टिकुलरली स्कीम जो है जैसे पीएम कुसुम स्कीम की यहाँ बात कर रहे हैं, सो इसमें वी आर सीइंग कि वी आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज सोलर पैनल्स इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे भी हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे और कॉस्ट भी हाई थी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, एंड ओवरऑल इंस्टॉलेशन ऑफ दी सोलर पैनल्स वाज आल्सो वेरी कॉस्टली। सो यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और चैलेंज आता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रिड कनेक्टिविटी। तो ग्रिड कनेक्टिविटी विद द मेन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी एक अभी लार्ज स्केल पे अभी चैलेंज है, ऑल्दो वहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है कि वी आर इंश्योरिंग कि 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स उनको हम सोलराइज भी करें, एट द सेम टाइम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने में हेल्प करेगा, इट वुड बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन फॉर द फार्मर्स ऑल्सो, सो दिस वुड हेल्प इन डबलिंग द फार्मर्स इनकम एट द सेम टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट का एक केस स्टडी है, डेवलपिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म that uses drone technology to map the land parcels, which would be more suitable for again installation of these solar power projects. And I think the largest solar power project India में जो है on land
वो राजस्थान में ही है, एग्जैक्ट नेम देखना पड़ेगा। एंड फ्लोटिंग लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है दैट इज इन तेलंगाना। Bhadla Solar Park है in Jaisalmer, Rajasthan, which is the largest solar power project in India. ठीक है। Bhadla Solar Park, Jaisalmer. Further, center launches new AI-based surveillance system to manage pests, connect scientists with farmers. तो अगेन R&D और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे कि AI का इंटीग्रेशन यहाँ पर है टू enhance the agricultural productivity, which is the major challenge in India. तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करे नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो कि AI विच इज पावर्ड बाय AI टू हेल्प फार्मर्स, जिससे कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं। इससे जो डिपेंडेंस है फार्मर का ऑन द पेस्टिसाइड रिटेलर्स और उनको इनकलकेट करना इन साइंटिफिक अप्रोच, ये बेटर हो पाए। तो जो बेटर सीड्स चाहिए प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड। और इसका मेजर एप्लीकेशन कैसे होएगा, जो फार्मर्स है दे कैन टेक फोटोज ऑफ द इन्फेस्टेड क्रॉप और द इंसेक्ट यूजिंग दिस सिस्टम, जिससे कि ट्रैक भी होता रहेगा। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हेल्प कर पाएंगे कि कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट द ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड वीडीसाइड्स एटसेट्रा। तो इससे सॉइल भी सेव होएगी एंड ऑल्सो द मेजर रिसोर्सेज एंड इवन द फूड विल नॉट बी over consumed with Contaminated fertilizers, etc. होगा। So in this case we are seeing कि we can connect it with the clean plant program जो recently announced हुआ है, and that would be implemented by the Indian Council of Agricultural Research. So in that we are focusing upon जैसे term ही है clean plant program, so virus free availability of plant saplings and even in terms of the agricultural sector, so that we are able to ensure the productivity in the agriculture increases. And for in this case अगर हम current state की बात करते हैं, for example cotton, तो pink bollworm attacks जो होते हैं that impacts the productivity and the yield of the cotton crop. So if we compare this with the international countries, for example Australia में, तो जो वहाँ पे yield है of I think it is close to 800 units, I'll have to see again, which it is only 480 in India. तो इनकम के ऊपर भी जो इम्पैक्ट आता है, इंडिया में जो एवरेज इनकम है मंथली इनकम ऑफ फार्मर्स दैट इज क्लोज टू ₹90,000, बट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इट इज 5 लाख रुपीज मंथली बेसिस पे. So that is the difference which even productivity the pest attacks it has on the income of the farmers also. Indian astronomers find new method to predict amplitude of next solar cycle. तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन्होंने न्यू मेथड फाइंड करा है टू प्रिडिक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ अपकमिंग सोलर साइकिल. So how it can help us, कोडाई can help in weather space weather forecasting में और help कर सकते हैं. and we'll जो हमारा previous data है can it be correlated with again future forecasting, for example new correlation using 100 years of solar data जो है. तो Kodaikanal Solar Observatory is located there, and space weather में in terms of this can also help in terms of understanding again the origin of the universe. So they have already discovered a new correlation. So this is one thing. And coronal mass ejections and the solar flares. So space weather हम किसको बोलते हैं? So these are the different events and phenomena which determines कि space weather कैसे function करते हैं. So they compress the magnetosphere of the earth and trigger the geomagnetic storms, which are again important for our national security also and even for economic growth, because जो हमारा critical infrastructure, for example satellites हो गया, रेडियो ट्रांसमिशन हो गया, रेडियो नेटवर्क हो गया, या इवन टेलीकॉम नेटवर्क्स हो गया, उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है. So that again hampers in the entire communication network या power transmission lines होता है, dams and threaten the lives of even astronauts also. So that is why it becomes profound for influence the modern civilization and the growth.
And specifically when we talk about solar cycle, तो approximately 11 years तक ये last करती है, and after all the 11 years it changes its direction. जो field होती है magnetic field, ये उसको change कर लेती है. की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सोलर साइकिल के, तो एक तो सनस्पॉट साइकिल होता है जिसमें सनस्पॉट्स विजिबल होते हैं जो डार्क होते हैं और कूलर रीजन्स होते हैं सन के सरफेस पे, जहाँ पे कि मैग्नेटिक एक्टिविटी टेक प्लेस करती है. सोलर फ्लेयर्स की बात करते हैं तो ये सडन बर्स्ट होते हैं एनर्जी का फ्रॉम द सन्स एटमॉस्फेयर. और कोरोनल मास इजेक्शन, ये बड़े बड़े से क्लाउड्स होते हैं प्लाज्मा के और मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि इजेक्ट होता है फ्रॉम द सन्स कोरोना. तो और दीज आर. कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से व्हेन दे हिट हाँ. द अर्थ और स्ट्रेटोस्फेयर वी सी द अरोरास. next, reshape the governance structures of AI companies. So this article mainly talks about targeting the three key areas, कि कैसे जो अप्रोच है टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द प्रॉपर एंड एथिकल फंक्शनिंग ऑफ एआई, जिसमें स्टेक होल्डर का बेनिफिट भी इट ऑल्सो गेट्स इंक्लूडेड, एंड ऑल्सो एथिक्स भी सारे फॉलो हो, एंड an approach of good corporate governance that also takes place. तो जो थ्री के की एरियाज हैं यहाँ पर, दे आर इनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन्स ऑफ कॉरपोरेशंस, जिसमें कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक बेनिफिट पर्पस. फर्दर इंसेंटिवाइज करना द मैनेजरियल कंप्लायंस ऑफ सच पर्पसेस, और जो कंप्लायंस का कॉस्ट है इन सब पर्पसेस को अडॉप्ट करने का, उसको भी रिड्यूस करना. जैसे देयर वर सेवरल केसेस, जैसे कि अभी द कंपनी इट फायर्ड, ओपन एआई कंपनी फायर्ड द सीईओ ऑफ द कंपनी सैम ऑल्टमैन ड्यू टू द कंसर्न्स ऑफ द रैपिड कमर्शलाइजेशन ऑफ एआई प्रोडक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग यूजर सेफ्टी. तो यहाँ पे हम बैलेंस की बात कर सकते हैं कि कैसे जो डेटा प्रिवेसी है, even the act that is present in India regarding the Digital Personal Data Protection Act, तो उसके बीच में से बैलेंस क्रिएट करना, और बिटवीन द एआई इनोवेशन. फर्दर इसमें एक मेजर स्टेप था रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस. तो इसमें ऑल्सो एआई इनोवेशन को भी प्रमोट करना इज इम्पोर्टेंट. रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस का कंसेप्ट ऑलरेडी जो फिनटेक सेक्टर है उसमें एग्जिस्ट करता है, बट अभी एआई में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे अगेन वी टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ एआई इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एंड ऑल्सो बैलेंसिंग द कॉपीराइट मैकेनिज्म्स, और जो प्रिवेसी है उसको भी Also, मेंटेन. जैसे यहाँ पे mentioned है कि 1970 में Milton Friedman, who is a famous economist, he stated businesses have a social responsibility to generate the profits for their shareholders. So there's an element of responsibility, obligation. You are onerous. You have to be accountable and transparent, which forms important elements of the corporate governance norms also. So there is an element of ethical usage जब हम अब particularly यहाँ AI companies की बात कर रहे हैं. Next, slowing a financing challenge. Slowing deposit growth will have implications for bank lending and broader economy. तो यहाँ पे the major trend that is being seen is कि जो current and savings accounts है, CSA, ये जो बैंक होते हैं उनके bread and butter sources होते हैं of funding. But यहाँ पे there is a decrease that is being seen in the total deposits. जैसे last year it was 43%, जो भी savings थी in these accounts, current and saving accounts, और अब it was 41%. Although the change might look insignificant, but it is significant, क्योंकि इससे जो बैंक के लिक्विडिटी रिस्क होते हैं ये इंक्रीज होते हैं, और जो फर्दर जो लोन बैंक प्रोवाइड करता है इवन दैट कैन डिक्रीज, जो फर्दर इकोनॉमिकली कंडीशंस तो क्रिएट. हाँ,
direct impact would be there on the credit availability in the economy, because credit creation depends upon the deposits that banks are attracting. So important यहाँ पे क्या है, कासा लिखा हुआ है, current account and saving account deposits जो बैंक receive करे, that is changing. And even after COVID-19 pandemic, we saw there was a structural shift for the people investing or putting their money into banks to the capital sector, which is in the share market. And secondly, we can say that the decline in the deposit ratio can also be because of the decline in the household savings after again 2020. Now again it has revived back to 20%. Now the challenge is how banks are going to ensure the attractiveness of having more funds in their accounts. So इसमें RBI stated कि you need to use again the traditional methodologies where banks can work upon the social awareness campaigns about diversifying this, that as we say that you're putting all your like eggs in one basket, so that is more risky. So instead of going just into the capital market, you need to also put certain proportion or percentage of your savings into banks also. So that is also very important aspect. So here this can play one of the important role. Next, an obstinate refusal to focus on welfare. So when we talk about welfare, social justice, majorly it is all the schemes that strike our mind, and also the major sectors like health, education, and research and development. Specifically, in addition, we also have the manufacturing sector. जिसमें कि बहुत ज़्यादा scope है, which is selective or maybe specific to India. तो मेजर अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो MG नरेगा और NFSA, which is the National Food Security Act, food subsidy. These are the two major schemes जो एम्प्लॉयमेंट और फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती है. लेकिन रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज कि इनका जो GDP शेयर का एक्सपेंडिचर है दैट रिड्यूस्ड significantly by around 10%. So this is a problem that is being shown or highlighted via this article. Further, the vulnerable group. We can interpret it this sense कि यहाँ पे जैसे mention है कि the government is reducing budgetary allocations for welfare. तो इसको ऐसे बोलने के बजाय we can say कि it is the revenue expenditure rationalization, because government out of a sudden blue तो expenditure या fund allocation reduce नहीं कर देगी, because that is the main goal of the public sector कि they need to take care of the welfare or the public welfare and the public interest. So this is revenue expenditure rationalization, which we are seeing on the part of the government, even in terms of reduction of the subsidies or the other areas. So this is important even from the perspective of the fiscal consolidation at the same time. And again, few days ago, we covered one more topic that government will be revisiting the schemes, the centrally sponsored schemes, particularly where we'll be reassessing their reliability, their sustainability, and the reason for their continuance, or the allocation of the funds जितना उसको हम कर रहे हैं क्या वो increase होना चाहिए, decrease होना चाहिए. So reassessment is also an important element of good governance. तो डिफरेंट एग्जांपल्स है, बाकी पोषण अभियान के थ्रू या NFSA फूड सब्सिडी जो है, MG नरेगा इज देयर, एंड ये तीन एरियाज है. तो revenue expenditure rationalization will move towards increasing the GDP allocation for healthcare sector, which should be again 3%, and increasing it to 6% for the education sector. So this is very important when we talk about reallocation of resources and utilization to their best possible utility levels. Yes. Further, vulnerable groups के लिए the scheme that is mentioned here is National Social Assistance Program. So this is mainly for the widows, elderly, और जो disabled individuals है. Again, इसमें भी expenditure half हो गया है of the share of GDP. Further, पोषण अभियान की हम यहाँ पे बात करते हैं. सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मिड डे मील प्रोग्राम. So these are all the major schemes that are mentioned here, जिसमें budget allocation जो है वो decrease हो गया.